Hello everyone, myself Dr. Amit Gupta, lead physiotherapist, CK Birla Hospital, RBH Jaipur. Happy Physiotherapy Day. Physiotherapy Day was designated on 8 September 1996. It marks the unity of physiotherapy community. It is an opportunity to recognize the work which physiotherapists do for their patients and community. If we talk about physiotherapy, it is not only treatment field, but it is a way of living. It is a way of using our body biomechanics correctly in our daily routine life activities like sitting, like driving, like jumping, like walking. In all that activities we can use our correct biomechanics to prevent the further injuries, and as well as these biomechanics can be used to treat the injuries. So physiotherapy has a very important role in prevention of injuries as well as in treatment of injuries. Namaskar, myself Dr. Ayushi, a consultant physiotherapist, hereby representing you the physiotherapy department of Rukmani Birla Hospital. Physiotherapy is an allied health profession. Our main focus is to provide advanced rehabilitation services and enhance quality of life. Our main motive is towards adding support, adding meaning to life. Caring for the patients of Rukmani Birla Hospital is quite challenging but potentially a rewarding experience for us. Here I am briefing you about the services available in physiotherapy department. We basically work for pain management program along with post-fracture and post-surgical cases, cardiopulmonary management, antenatal and postnatal management. We are also working with the various fields like renal, onco, pediatric, geriatric management. We are also having a very special service for dysphagia management, diabetes and obesity management. We already using a very advanced technology here like EMG biofeedback, microwave diathermy, traction unit, paraffin wax bath unit, hydrocolloidal and cryotherapy unit. We also have a combination electrotherapy unit which includes laser, IFT, ultrasound tents. We also have a very special high motorized and digital beds and a very advanced equipments for neuro and ortho cases. Here have a look for this cryotherapy unit. This is a cold therapy unit used for acute pain or the post-surgical cases, especially hip replacement and knee replacement. This is an eye-catching, colorful element of our department which we called as hand rehab workstation. Used in the neurological and pediatric condition such as cerebral palsy and monoparesis and others. Used for fine grips of hand and fingers. With that we have therabands and weight cuff for all the registered exercises to increase the strengthening of muscles. This is the most commonly used magnetic shoulder wheel used in the case of frozen shoulder and the post-surgical cases of shoulder joint. It basically improves the range of motion of shoulder joint. With that we have different kind of mobility aids like walker canes to increase the mobilization, especially in the post-surgical cases of ortho. Myself Dr. Akanksha Rajpurohit, I am consultant physiotherapist in Rukmani Birla Hospital. Today I will introduce you so many new equipments जो कि हम लोग फिजियोथेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं उनकी एडवांस रिकवरी के लिए। ये दोनों रिकम्बेंट बाइक्स हैं जो कि मोस्टली हिप जॉइंट और नी जॉइंट की मूवमेंट के लिए उनके अंदर मसल की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए काम में ली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नी और स्पेशली हिप जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये मोटराइज्ड हाई लो मैनिपुलेशन बेड है जो कि मोस्टली मैनुअल थेरेपी के लिए यूज आता है जिसपे पेशेंट कंफर्टेबली अपने बॉडी को मूव कर पाता है। ये क्वाड्रिसेप टेबल है। ये क्वाड्रिसेप टेबल मोस्टली क्वाड्रिसेप मसल जो कि थाई मसल होती है उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए काम में ली जाती है। ये क्वाड्रिसेप मसल स्पेशली नी जॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है। जब अपना नी जॉइंट इस तरीके से काम करता है तो ये मसल की स्ट्रेंथ को बनाए रखता है। स्पेशली नी की जो अलग अलग तरह की कंडीशन होती है जैसे घुटने का दर्द हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, स्पेशली या फिर जो लोग घुटना चेंज करवाते हैं, पोस्ट टीकिया की कंडीशन हो गई, तब ये मसल हमेशा अक्सर कमजोर हो जाती है। तो उस मसल के अंदर ताकत लाने के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए इस क्वाड्रिसेप चेयर को काम में लिया जाता है जिससे कि ये मसल अपना काम पूरा अच्छी तरीके से शुरू कर देती है। ये CPM मशीन है जिसका पूरा नाम कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट है। ये मशीन स्पेशली घुटने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पोस्ट टीकिया की कंडीशन हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया है या पोस्ट सर्जिकल जो कंडीशन होती है जिसमें अक्सर घुटना जो होता है कड़क हो जाता है और वो मुड़ नहीं पाता है, तो उसके अंदर रेंज को बढ़ाने के लिए और उसको मोबिलाइज करने के लिए ये मशीन काम में ली जाती है जिसमें हम
पेशेंट का पैर इस तरीके से इस मशीन पे रखते हैं और मशीन अपना काम करती है और घुटने के मूवमेंट को बढ़ाती है और उसकी रेंज को भी इंक्रीज करती है। ये मशीन स्पोर्ट्स इंजरी के जो पेशेंट होते हैं स्पेशली उसमें भी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बहुत जल्दी ही अपने घुटने की रेंज को गेन कर पाते हैं। मैं नीरज शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे कई सारी मोडालिटीज़ और कई सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि न्यूरो रिहैब प्रोग्राम में काम में लिए जाते हैं। इसी मोडालिटीज़ की सीरीज़ में हम देखते हैं जो कि ये है मोटराइज टिल्ट बेड। इसके अंदर हम स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर जॉइंट सेंस वीक हो जाते हैं तो पेशेंट को प्रोप्रियोसेप्शन स्टिमुलेशन के लिए वेट बियरिंग एक्टिविटी कराई जाती है। और पोस्चरल हाइपोटेंशन के केसेस के अंदर जिन पेशेंट में लाइन टू सिटिंग पोजीशन में आने पे चक्कर आते हैं तो उसके लिए एडेप्टेशन ट्रेनिंग, अलग अलग पोजीशन पे एडेप्टेशन ट्रेनिंग दी जाती है। ये इक्विपमेंट है जो कि पैरेलल बार के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 वर्टिकल बार होती है, 2 हॉरिजॉन्टल बार होती है जो कि एडजस्टेबल होती है और पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेनली ये न्यूरो रिहैब प्रोग्राम में काम में लिया जाता है, जिसमें हम पेशेंट को बैलेंस ट्रेनिंग देते हैं, गेट ट्रेनिंग देते हैं, पेशेंट को किस तरीके से चलना है, ये सारी ट्रेनिंग हम पैरेलल बार के थ्रू देते हैं। इसमें एक सामने फ्रंट मिरर होता है जो कि पेशेंट को विजुअल फीडबैक देता है। ये फिजियो बॉल है जो कि पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग साइज की लेते हैं और इसमें हम मेनली पेशेंट की ट्रंक बैलेंस ट्रेनिंग के लिए इस बॉल का यूज किया जाता है। ये मोटराइज्ड बोबाद बेड है जो कि मेनली न्यूरो रिहैब प्रोग्राम के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें पैरालिसिस के केस, हेमीप्लीजिया, पैराप्लीजिया केसेस को मैनुअल एक्सरसाइज के लिए काम में लिया जाता है। Hello everyone, I am Dr. Kapil Mathur, consultant physiotherapist in Rukmani Birla Hospital. Let me introduce this machine. This is the traction unit kit, mainly used for the lumbar and the cervical problems. Next we will move for this modality. This is the combination therapy unit, so mainly used for the patient with suffering from the pain. This is the inbuilt with the all the range or wide range of electrical current and with the ultrasound and laser therapy unit. नेक्स्ट मॉडलिटीज हम जो दिखाने जा रहे हैं ये है माइक्रोवेव डायथेरेपी। इट इज द हीटिंग मॉडलिटीज मेनली यूज फॉर द पेन रिलीविंग। दिस इज फॉर हाइड्रोकोलेट्रल यूनिट। दिस इज द मेनली यूज फॉर द पेन रिलीविंग। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द पैराफिन वैक्स बाथ। पैराफिन वैक्स बाथ मेनली यूज फॉर द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस रिमूव में इसका हेल्प यूज लिया जाता है और पेन रिलीव में भी आल्सो इट इज आल्सो यूजफुल इन द पेन रिलीव।